Hello children, welcome to the English class. Yesterday we have completed half chapter and we will continue the chapter 7 today as well. Children, yesterday we have discussed that how the peahen कैसे peahen अपने one by one eggs को वहाँ पर रूफ पर उसने कलेक्ट किया and how she stayed there और कैसे वो धूप में भी बारिश में भी वहाँ से एक इंच भी नहीं हिली just to protect her kids and how the narrator has told कि कैसे narrator ने peahen को अपना pet मान लिया because she was longed for the pets. So now let's continue कि now what peahen had done and what happened with the eggs. Eggs के साथ क्या हुआ? Now let us see. I'm going to read it. As always, you have to hold pencil in your hand. आपको अपने हाथ में पेंसिल्स को होल्ड करना है. उसके बाद आपको where I'm reading आप वहाँ पर मेरे साथ साथ उसको रीड करेंगे. The word which you feel is difficult, आपको लगता है जो word difficult है आप उसको underline कर लेंगे and you can ask the meaning to me also. Either you can check your dictionary also. आप dictionary से भी लिख सकते हैं, आप मुझसे भी पूछ सकते हैं. And because it will be easier for you, आपके लिए easy होगा जब आप इस chapter को रिवाइज करेंगे. तो चलिए लेट्स स्टार्ट पेज नंबर 41. आज हम पेज नंबर 41 से पढ़ेंगे. My mother told me that the peahen went away sometimes in the night. There were some cats in the vicinity and I dreaded the thought that they might snatch the eggs. Every morning I would go and took a look at the peahen. A fortnight later, when I went to the balcony, I was aghast at what I saw. A cat was scurrying away with an egg in its mouth. I shrieked at it, and in the hullabaloo, it dropped the egg. I felt very sad looking at the contents of the broken egg. I hoped that this would not happen again. My mother told me, मेरी मदर ने मुझे बताया that the peahen went away. peahen कहाँ चली जाती है? Sometimes in the night. रात में कभी कभी कहाँ चली जाती है? दूर चली जाती है. There were some cats in the vicinity. Vicinity होता है children the area around. जो हमारे आसपास का एरिया होता है वहाँ पर क्या है? Cats हैं. Cats थी वहाँ पर. And I dreaded. Dreaded means children I have already mentioned here. Feared. Dreaded means होता है feared. यानी I feared the thought that they might snatch the egg. और उनको क्या डर है कि जो कैट हैं वो जो एग्स है उसको स्नैच कर सकती हैं. स्नैच मीन्स होता है चिल्ड्रन खींच लेना यानी ले लेना. एवरी मॉर्निंग आई वुड गो एंड टेक अ लुक एट द peahen. एंड नाउ व्हाट शी वाज डूइंग, शी वाज गोइंग एवरी मॉर्निंग. हर रोज़ क्या कर रही थी वो? हर रोज़ जाती थी. एवरी मॉर्निंग शी लुक एट द peahen. अ फोर्टनाइट लेटर. फोर्टनाइट मीन्स 14 days later. 14 days बाद when I went to the balcony, जब मैं कहाँ गई? बालकनी में. I was aghast means surprised. क्या हो जाता है? aghast means होता है filled with horror और surprise. At what I saw, जो मैंने देखा यानी जो उस नरेटर ने देखा उसके लिए वो horror यानी बहुत डर से भर गई. What was happen? A cat was scurrying. Scurrying होता है children छोटे छोटे steps रख के भागना जल्दी जल्दी टोज पे जब हम भागते हैं तो a cat was scurrying away with an egg in its mouth. एक एग वो कहाँ ले जा रही थी? अपने मुंह में लेकर जा रही थी. I shrieked at it. और नरेटर ने क्या किया? नरेटर shrieked यानी जोर की आवाज में चिल्लाया. shout loud sharp cry. and in the hullabaloo. hullabaloo means होता है loud noise. बहुत ज़्यादा शोर की आवाज़ होती है. तो इट ड्रॉप द एग. जब ज़ोर से नरेटर ने श्रीक किया, शाउट किया तो ज़ोर ज़ोर से आवाज़ हुई और उस आवाज़ के डर से उस कैट ने क्या किया? शी ड्रॉप्ड द एग. आई फेल्ट वेरी सैड लुकिंग एट द कंटेंट्स. आई फेल्ट वेरी सैड लुकिंग एट द कंटेंट्स ऑफ द ब्रोकन एग. नाउ नरेटर को क्या फील हो रहा था? बहुत सैड फील हो रहा था. क्यों? क्योंकि वो जो एग था वो ब्रोक हो गया, उसके अलग अलग टुकड़े हो गए. I hoped that this would not happen again. और वो क्या होप कर रही थी? that कि आगे से ऐसा ना हो, कि आगे से जो एग्स हैं वो ब्रोक ना हो, कोई उन एग्स को ना तोड़े.
without losing hope. One afternoon, I heard my mother calling out to me. I ran upstairs. I saw a teeny-weeny chick next to its mother. I ran in to get the camera. And just at the moment, the peahen got up and another itsy-bitsy chick was there. They followed their mother, and while we were looking at them, the peahen flew from the roof onto the ground. One chick followed. I just stared at it taking such a flight from the balcony. It was indeed not a small height for a baby chick. How would it come up again? The peahen continued to visit. Peahen continue यानी continue थी, visit आती थी. कहाँ पर? Where the chicks eggs were laying, जहाँ पर उसने eggs रखे हुए थे. Without losing hope, बिना अपनी hope को खोए. Without losing hope means here children कि उसको एक hope थी, उसने अपनी hope जो थी, उम्मीद थी, वो नहीं खोई थी. She was in hope कि eggs hatch होंगे और उसके baby बाहर निकलेंगे. One afternoon, I heard my mother calling out to me. एक afternoon को I heard my mother, मेरी mother ने मुझे आवाज़ दी. मैंने सुना कि my mother was calling me. I ran upstairs. I saw a teeny-weeny chick. Teeny-weeny means children very small. Teeny-weeny means होता है बहुत छोटा. तो I saw a teeny-weeny chick next to its mother. मैंने एक छोटे से chick को next to its mother, तो उसकी mother कौन हुई? peahen. Yes, तो peahen के बराबर में देखा. I ran in to get the camera. तो मैं क्या लेने चली गई? कैमरा लेने के लिए भागी. जब भी हम कोई ऐसी चीज़ देखते हैं तो हम क्या निकाल लेते हैं? अपना कैमरा निकाल के we just try to capture that moment. हम उस मोमेंट को कैद कर लेना चाहते हैं, उसको कैमरे में एक फ़ोटो खींच लेना चाहते हैं ताकि उसकी क्या रहे, उनको याद रहे. She also ran to get the camera. And just at the moment, the peahen got up. Got up means children, got means get. Second form of the get is got. तो got up means खड़ी हो गई. And another itsy bitsy chick was there. और जैसे ही वो खड़ी हुई तो उस एग में से क्या निकला? एक और itsy bitsy यानी एक और छोटा सा very small chick. I told you ना इन चैप्टर 5 हमने बताया था कि एग्स को जो बर्ड्स होती है वो उनके ऊपर बैठकर हैच करती हैं, राइट? अपने बेबीज़ को एग में से बाहर निकालती हैं. वो तब निकलते हैं वो जब वो उन एग्स के ऊपर बैठ जाती हैं, उनको हैच कर देती हैं. They followed their mother. अब वो क्या कर रहे थे? अपनी मदर को फॉलो कर रहे थे, पीछे पीछे चल रहे थे. And while we were looking at them, जब हम उनकी तरफ देख रहे थे, the peahen flew from the roof onto the ground. और जो छत थी वहाँ से peahen कहाँ flew हो गई? Flew means fly. Flew is the second form of fly. तो fly होकर कहाँ पहुँच गई? ग्राउंड पे. One chick followed. तो उनमें से एक चिक ने उसको फॉलो किया. I just stared at it. मैं इसकी तरफ stare मतलब look, कॉन्स्टेंटली, बिना पलक झपके देखना. उसका मतलब होता है घूरना, जिसे कहते हैं. Stared at it, taking such a flight. Flight मतलब उड़ान, उड़ना. जब जो चिक ऐसे उड़ रहा था उसको मैं कॉन्स्टेंटली विदाउट ब्लिंकिंग आईज the girl was watching from the balcony. It was indeed not a small height. क्योंकि रूफ से ग्राउंड तक फ्लाई करके जाना कोई एक छोटी हाइट नहीं थी. एंड इट वॉज बिग हाइट, लॉन्ग हाइट थी, ऊंचाई थी. फॉर अ बेबी चिक. हाउ कुड इट कम अप अगेन? अब ये वापस कैसे आएगा? नाउ शी इज थिंकिंग कि नीचे तो चला गया ग्राउंड पे, लेकिन हाउ विल इट कम? इट विल कम. हाउ विल इट कम बैक? ये वापस कैसे आएगा? नेक्स्ट चिल्ड्रन, टर्न द पेज, कम टू पेज नंबर 42. द मदर peahen flew back again and flew down once again. वो फिर से वापस आई रूफ पर और फिर से वापस आने के बाद नीचे गई. बिकॉज पहले एक बार गई तो एक चिक गया वापस, दोबारा आई दूसरे चिक को लेने के लिए. द अदर चिक विच वॉज जस्ट स्टैंडिंग ऑन द एज फॉलोड. एज मीन्स होता है चिल्ड्रन किनारा. जैसे ये बुक है तो इसका कॉर्नर, तो वो जो दूसरा चिक था ऐसा खड़ा था जैसे उसका वेट ही कर रहा हो, लाइक कॉर्नर पे खड़ा हुआ था. द peahen walked towards the hedge. hedge होता है चिल्ड्रन
रॉ ऑफ बुशेस, एक लाइन में जब बुशेस होती हैं यानी झाड़ियाँ होती हैं, दैट इज़ कॉल्ड हेज। किधर गई वो पीहन वॉक करके? हेज की तरफ। एंड आउट ऑफ हर हाउस विद हर चिक्स फॉलोइंग हर, जो और वो हेज कहाँ पर था? हमारे घर के बाहर। और वो जो चिक थे वो क्या कर रहे थे? फॉलोइंग हर, वो उसको पीछे पीछे चल रहे थे। लाइक व्हेन वी लर्न समथिंग, लाइक व्हेन वी लर्न वॉकिंग, तो हम भी क्या करते हैं जब हम बच्चे होते हैं, हमारे पेरेंट्स या मदर या पेरेंट्स या बड़े लोग जब हमको चलना सिखाते हैं तो हम भी उनको फॉलो करके चलना सीखते हैं। तो द सेम वे जो मदर थी, जो पीहन थी, वो भी अपने बच्चों को, चिक को क्या कर रही थी? सिखा रही थी। देन व्हाट दे वर डूइंग? दे वर फॉलोइंग हर, और हम वो क्या कर रहे थे? उसको देख रहे थे और फॉलो कर रहे थे। I asked my mother how the minutes old chicks could fly from such a height. She smiled and answered that it was the trust the chicks had on their mother. Now the narrator asked, narrator ने पूछा कि अभी अभी कुछ मिनट पहले बॉर्न हुए ये चिक्स कैसे इतनी ऊंचाई से उड़ सकते हैं? She was really surprised. Then she asked her mother, तो उसकी मदर ने स्माइल करते हुए रिप्लाई किया, उसकी मदर ने स्माइल करते हुए रिप्लाई किया दैट इट वॉज द ट्रस्ट द चिक्स हैड ऑन देयर मदर। किसकी वजह से उड़ पाए वो? क्योंकि उन चिक्स को अपनी मदर पे क्या था? ट्रस्ट था। सो चिल्ड्रन, आई एम श्योर आपको अच्छे से ये चैप्टर समझ आया एंड आई कुड परसेप्ट विद योर आंसर्स, जैसे आप मुझे आंसर्स कर रहे थे उससे मुझे ये समझ आया कि इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, यू टुक इंटरेस्ट इन दैट, आपको बहुत इंटरेस्ट भी आया इस चैप्टर में। तो व्हाट इज़ द मॉरल ऑफ दिस स्टोरी, यानी इस चैप्टर से हमें क्या समझ आया? लाइक वी शुड ट्रस्ट ऑन आवर एल्डर्स, स्पेशली ऑन मदर्स। हम सबको अपने बड़ों पर ट्रस्ट करना चाहिए। वी शुड नॉट बी फियर्ड, हमको डरना नहीं चाहिए। लाइक द चिक्स हैड ट्रस्ट ऑन द मदर, ट्रस्ट मतलब होता है विश्वास। जैसे चिक्स को अपने मदर पीहन पर ट्रस्ट था एंड दे फ्लू फॉलोड हर, तो वी शुड ऑल्सो फॉलोड एंड लर्न थिंग्स फ्रॉम आवर पेरेंट्स एंड स्पेशली फ्रॉम मदर। Thank you children, please revise this chapter